you did your engineering from NIT Surat. So why did you opted this MBA as a career option? मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्रॉस टेस्ट जो आपने यहाँ पर लिखे थे जितने टेस्ट उसमें एवरेज स्कोर जो भी आपका आ रहा था तो उस स्कोर से आपका कैट का स्कोर थोड़ा ज़्यादा आया है, एट पार रहा है कि उससे कम आपको फाइनल एग्जाम में मिला है? कॉलेज के साथ जो स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स रहेगी आप? हेलो एवरीवन, I welcome you all on the amazing platform of LPT CAT channel. Today we have Ayush with us who got 99.70 percentile in CAT 2024. So Ayush, I would like to ask some questions because many people or the next generation are waiting for your your insights. How did you crack this examination? So first question is why CAT? Why MBA as a career option? Because you did your engineering from NIT Surat. So why did you opted this MBA as a career option? Okay. So first of all, I like to begin with the world. So you would see the companies out there are majorly focused on the data, and while in engineering I have learned about the data, but to get to a leadership positions, you should know about all the business domains. You should know how the business functions and how the different business domains come together to achieve an operational organizational objective. So for that, an MBA is a perfect career path which can boost your knowledge and also take you to a leadership position in a much faster time. Great. So which means you are saying you will be using your engineering in the MBA to get some leadership position, right? Yes, sir. That's very great. Augmenting both of them will be very crucial. That's great. So Ayush, how was your preparation journey so far? Okay, so from the start, it was a very difficult journey, mainly because of the VARC. It was one of my weakest sections, and being an engineer, many would relate to that. Okay. So Ayush, I can easily recall when you came to me last year, then you were like कि सर VRC मेरा काफ़ी स्ट्रगल हो रहा है और मुझे VRC में ही मैं somehow I am feeling कि मैं शायद कैट का एग्ज़ाम by looking at the pattern of CAT examination, you were like सर मैं मैथ्स तो निकाल लूँगा, मैं LRD अच्छे से कर लूँगा, बट VRC समथिंग जिससे मुझे बहुत फियर फैक्टर है. तो उस टाइम का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करो बच्चों के साथ कि कैसे आपने उसको फियर फैक्टर ओवरकम किया और किस तरीके का सपोर्ट LPT टीम से आपको मिला है? सो स्टार्टिंग में जब आपके पास आया था तब लाइक माई VRC वॉज टू बैड. सो जब आपसे भी बात हुई थी तो आपने थोड़ा स्टार्ट में गाइडेंस दिया कि हाउ टू स्टार्ट, एंड देन आपने मुझे मेंटर अलॉट किए थे अजय सर, जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी. उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट मुझे गाइडेंस दिया आफ्टर ईच एंड एवरी मॉक, ईच एंड एवरी टेस्ट एंड आफ्टर ईच एंड एवरी क्लास ही यूज्ड टू गाइड मी ऑन एवरीथिंग दैट he used to own my approach. Okay. He helped me in improving my approach, so that played a crucial role in improving my VRC. This very great. कितना हेल्पफुल था यहाँ का कंटेंट, आपको कैसा लगा? टेस्ट सीरीज ने कैसे हेल्प किया? टेस्ट सीरीज में क्या डिफरेंट अप्रोच यहाँ होती थी? आप कुछ ऐसा पार्ट शेयर करें जिससे बच्चों को आगे हेल्प मिले. Yes, sir. So starting from the content was too good, and the modules were all like too comprehensive. We had each and every type of the question, and there were ample number of questions. We never needed any other source to practice the questions. And coming to the test series was very good. We had all type of the patterns in the test series. Some was easy, some was surprisingly difficult test papers. So उन papers ने बहुत help करी हमारी to the real situation के लिए prepare होने में. Exactly. So you are saying कि पेपर का difficulty level change हो रहा था जिससे आपको real paper easy लगे या फिर एट पार लगे. तो आपका स्कोर मैं पूछना चाहता हूँ कि अक्रॉस टेस्ट जो आपने यहाँ पर लिखे थे जितने टेस्ट उसमें एवरेज स्कोर जो भी आपका आ रहा था तो उस स्कोर से आपका कैट का स्कोर थोड़ा ज़्यादा आया है, एट पार रहा है कि उससे कम आपको फाइनल एग्जाम में मिला है? सो जी, मेरा स्कोर रहा था वो आई गेस कैट से तो कम ही रहा था या फिर उसी रेंज में रहा है. तो जो यहाँ के टेस्ट सीरीज थे वो मोर देन इनफ. यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो एट पार विद द कैट, और आई वुड से मोर देन कैट था हमेशा से ही. तो उसने बहुत मेरी अच्छी हेल्प करी, और जो मेरा फाइनल स्कोर आया वो भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो मेरा मॉक्स में एवरेज चल रहा था उसी के अराउंड. ओके. सो आयुष, एक और चीज़ है जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, रादर आपसे जानना चाहता हूँ उसके इनसाइट्स, कि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे सोचते हैं कि जस्ट राइटिंग दी मॉक टेस्ट आई एम डन ना, टेस्ट लिखा घर पे आ गए है ना, अब मैं प्रिपेयर्ड हूँ एग्ज़ाम फाइट करने के लिए.
क्या इसमें कुछ चीज़ आप ऐड करोगे जो यहाँ पर डिफरेंट थी? आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ में आनी चाहिए, बच्चों को इसको जानना चाहिए कि जस्ट राइटिंग मॉक टेस्ट आर नॉट इनफ, उसका नेक्स्ट पार्ट क्या होता है वो आप एक बार बच्चों को बताएं। So writing a mock is just one part, and the another part comes is the analysis, which is I guess more important than the mock, because you get to know about your gray areas where you have to improve. And here the thing which was different was like for each and every mock analysis was conducted, which is not there in the others obviously. But Okay. here each and every question and for in each and every test the analysis was conducted, and that was of great help to me. ओके, ऑन फनी पार्ट आयुष, एक चीज़ और मुझे याद आ रही है कि इनिशियली वो वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट गेटिंग गुड स्कोर इन क्वांट, राइट? यू वर लाइक कि सर क्वांट तो मेरा बहुत सुपर्ब है, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन मैंने उस टाइम पे आपको शायद कुछ बोला था कि आप बच्चों को शेयर करोगे और उससे क्या हेल्प मिली है ये भी एक बार बताओ स्टूडेंट्स को। सो एग्जैक्टली, तो स्टार्टिंग में मेरा टारगेट था कि क्वांट में आई कैन इजीली स्कोर 35 to 40 एंड आई वाज टारगेटिंग दैट स्कोर ओनली। बट जब मैं आपसे मिला तो आपने बोला था कि आई कैन स्कोर 45 to 50 मार्क्स इजीली, एंड आप ही ने मुझे कॉन्स्टेंटली उसके लिए गाइडेंस भी दिया था। थ्रू आउट द ईयर कॉन्स्टेंट गाइडेंस रहा और उसी से मेरी हेल्प हुई कि मैंने कैट में भी एक हाई स्कोर कर पाया, क्योंकि मेरा क्वांट्स का सेक्शन अच्छा स्कोरिंग रहा। एग्जैक्टली, यू गॉट 45 मार्क्स, राइट? sir. सो इससे कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी है कि आप शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि क्रैक कैट स्मार्ट स्टडी इज इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो अबाउट कि कौन से सेक्शन में कितनी कट ऑफ रहती है। अगर आपका एक एरिया वीक है, वीकर साइड है, जैसे वीआरसी आपके केस में था, Yes, sir. तो आयुष के केस में वीआरसी थोड़ा वीकर साइड में था, तो सजेशन यही था कि आप जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ टू गिव सम क्वेश्चन टू वीआरसी सेगमेंट, है ना? तो आपने तीनों में अच्छा स्कोर किया है, ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ थी कि बच्चे कई बार प्रिपरेशन करते टाइम ऐसा लगता है उनको कि सर कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन सा आ रहा है कि अब मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा है, क्या करना चाहिए जिससे मैं थ्रू आउट ये जर्नी एंजॉय कर सकूं और प्रिपरेशन में पूरे टाइम में डिवोट कर सकूं। सो आयुष, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जर्नी अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स? अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, so जब भी मैं डिमोटिवेटेड फील करता था तो आई वुड बी लाइक चेंजिंग माई पैटर्न्स ऑफ स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हेल्प मी अलॉट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे अगर बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो यू कैन गो फॉर अ वॉक। आई यूज टू रीड नॉवेल्स फॉर दैट, and especially the fiction novels, which helps a lot because it diverts your mind from the studies, and when you get back to the studies you can give your 100%. So that was the thing which kept me motivated. That's great. and get going. ओके, सो एक और चीज़ मैं इसमें जानना चाहूँगा जो शायद स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल रहेगा। कई बार बच्चों के डाउट्स आते हैं कि कितना टाइम पर डे डिवोट करना चाहिए इसमें प्रिपरेशन में, और आपने कितना टाइम डिवोट किया और क्यों इतना टाइम दिया जिससे आपके इतने मार्क्स आए? Okay, so it depends on the person to person. There are people with different cases. If you are a working professional, it might take 2 years because you will not be able to give that time. You will be able to give only 3 to 4 hours. But if you have ample of time, you might crack in 6 to 7 months also. So it depends totally on the person to person. दिस ग्रेट। सो यू सेइंग कि जो बच्चा फ्रेशर है, मान लो कॉलेज के साथ वो तैयारी कर रहा है, तो आपका तो वर्क एक्स भी है, Yes, sir. तो कॉलेज के साथ जो स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स रहेगी आपके? So majority of the college classes are in the morning. So I would say you should take a time of at least 1 to 1.5 years. So you will be devoting a daily 3 to 4 hours. That would be enough with this long time, I guess. All right. So Ayush, last question to you. How will you guide or any message to the next generation or the future CAT aspirants? So what should be the crisp message? क्या उनको स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? एक शॉर्ट में आप अगर उनको गाइड करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। So my message would be to choose your mentors wisely, because mentors play a major role in your preparation, and you should trust your mentors. Whenever they guide you something, it's for your good and it will be helpful for you. I have seen this throughout my career, like throughout my journey. I used to meet Mukesh sir every week, so that helped me a lot. So I would say choose your mentors wisely and follow them blindly, I would say. Okay, so thank you Ayush to get some time out of your busy schedule because you are working professional and at the same time आप अभी enjoy कर रहे होगे family के साथ भी, and I would like to congratulate once again. Thank you so much, sir. Thank you Ayush. So thank you all of you for watching this video.